Assalamualaikum. This is your course instructor Pasikra Iqbal from Division of Science and Technology, University of Education. The topic today you are going to learn is project quality management. Students, you have already learned a course or you are learning the course that is named as Software Quality Assurance. And in Software Quality Assurance, we used to learn the thing that is software quality. So I hope you know much about software quality already, but in this course that is IT project management, because software quality or project quality is the subdomain of project or it should have to be there. Quality matters a lot, so that's why if you are going to be a project manager in your future or if you are going to think about project management as profession, so you should have to know about project quality. So the topic today that we are going to learn is all about software quality or how can we deal software quality as a whole. First of all, you should have to know that why we are going to deal with the project quality or why is it important. So the importance of project quality management is most of the people consider joke about the poor quality of IT products as there are several examples also. Like baby food is a company of China which have severely affected by the software quality, or there are several other examples too. People seem to accept systems being down occasionally or needing to reboot their PCs. उनके लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपका जो सिस्टम है वो टाइमली डाउन होता है और उनको उसको रीबूट करना पड़ता है बिकॉज दे डोंट नो और दे डोंट कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट कि उनके सिस्टम्स को उनके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड होना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम. But quality is very important in many IT projects. Unfortunately, quality control incidents in products from China, baby food materials and toys. तो बहुत सारे इस तरह के और इंसिडेंसेस भी मिल जाएंगे आगे हम आपको और एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी. आप ऑनलाइन भी बहुत सारे एग्जाम्पल सर्च आउट कर सकते हो जहाँ पे प्रोजेक्ट मीन सॉफ्टवेयर क्वालिटी ने अफेक्ट किया है. सो व्हाट वेंट रॉन्ग. ये एक एग्जांपल है 1986 की जहाँ पर हॉस्पिटल में दो पेशेंट्स थे जो जिनकी डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ अ मॉल फंक्शनिंग ऑफ अ machine that is Therac 25. Therac 25 machine is basically a machine that is used for the treatment with the help of radiations to the cancer patients. तो आपके जो रेडिएशंस हैं उनकी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे वो मशीन्स या उनके जो रेडिएशंस हैं वो थ्रो करनी होती हैं और उससे आपके जो बॉडी के कैंसर सेल्स हैं वो सिर्फ वो डिस्ट्रॉय होते हैं. सो ये मशीन जो एक बहुत डिवास्टेटिंग अफेक्ट किया था और इसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स की जिसमें डेथ हुई थी और उसका प्रॉब्लम ये था कि उसकी मॉल फंक्शनिंग थी और उसकी सही तरह से डेटा हैंडलिंग नहीं की गई थी और पेशेंट्स की जो लेजर्स की या जो ट्रीटमेंट की जो रेडिएशंस थी उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर गई थी और उसके इंक्रीज करने की वजह से उनके कैंसर सेल्स एज वेल एज जो बॉडी के पॉजिटिव सेल्स हैं वो भी डैमेज हो गए थे, बर्निंग सेंसेशन हो गई थी और उसके कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ्स हो गई थी. सो दिस इज बेसिकली वन एग्जाम्पल ऑफ मॉल फंक्शनिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो आपकी किसी एक प्रोजेक्ट की आपकी किसी एक प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इतना मैटर करता है. So in 1986, two hospital patients died after receiving fatal doses of radiation from a Therac 25 machine after software problem caused the machine to ignore calibration data. अब डेटा को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया था तो इस वजह से ये जो है ये अमवात हुई थी 1986 में और ये जारी रही थी 1987 तक और बहुत सारी कंट्रीज में इसके केसेस रिपोर्ट किए गए थे जबकि ट्रैक 25 जो है ये एक स्टैंडर्ड मशीन है और इसको काफ़ी अरसे से कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. Britain's Coast Guard was unable to use its computers for several hours in May 2004 after being hit by the Sasser virus, which knocked out the electronic mapping systems, email, and other computer functions, forcing workers to revert to pen, paper, and radios. अब एक और एग्जांपल उन्होंने दे दिया है ब्रिटेन के कोस्ट गार्ड की जहां पर उन्होंने ये बोला कि उनके जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर वायरस ने अफेक्ट कर दिया था और ये वायरस सैसर वायरस था. ये सैसर वायरस अब क्योंकि 2004 की एग्जांपल है तो दिस बेसिकली अफेक्ट्स द विंडोज एक्सपी और विंडोज 2000 मतलब थोड़ा पुराना वायरस है, अपडेटेड नहीं है. सो ये तब की एग्जांपल है कि जब लोगों को दोबारा से पेन पेपर और रेडियोज पे वापस आना पड़ा था रादर यूजिंग कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स को अगर इस्तेमाल करना है तो फॉर श्योर उनको
क्लीन होना चाहिए और वायरस अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये भी अगेन आपके जो सिस्टम्स हैं या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो उससे हॉल्ट करते हैं, और अगर वो हॉल्ट करते हैं तो आपका सिस्टम हॉल्ट करता है। More than 100 incidents of loss or stolen financial information were reported over the past year, including personal information of 1.2 federal employees, 200,000 ऑनलाइन ट्रेडिंग कस्टमर्स एंड 33,000 एयरफोर्स ऑफिसर्स। अब यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जांपल दे दिया जहाँ पे तकरीबन कोई 100 लोगों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ाया हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मॉल फंक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ प्रोडक्ट। सो ये चीज़ें, और इसके अलावा आपका पर्सनल डेटा या किसी भी तरह का आपका बैंक रिलेटेड डेटा, आपका सिटीजनशिप रिलेटेड डेटा, आपकी किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब सारा कुछ ऑनलाइन है और अब ऑनलाइन से ज़्यादा बढ़ के अब द थिंग वेंट ऑन ubiquitous computing or cloud computing or something like that. So वो चीज़ें जो है वो अब इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब इन हैंड नहीं हैं। वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, और मशीन्स आर समवेयर रिलेटेड टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। सो दैट्स वाई आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की क्वालिटी मैटर करती है। Now what is project quality? A definition, and this is basically the definition of ISO 9000, that is International Organization for Standardization। वो डिफाइन करते हैं क्वालिटी को एज अ डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों ने इसको जब क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी पढ़ा होगा कि क्वालिटी का मतलब ही ये है कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं दैट मीन्स कि आपने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता और बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। मतलब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बहुत सारे तरीके और हैं। आप हार्ड कोड करके भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम की एफिशिएंसी वहाँ ऑन स्टेक चली जाती है। सिस्टम को एफिशिएंट होना चाहिए एज वेल एज आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। अदर एक्सपर्ट डेफिनेशंस आर कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। कंफॉर्मेंट्स अगेन वही चीज़ है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चीज़ें होंगी तो आप कहोगे कि आपने कंफॉर्मेंस को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर दिया। द प्रोजेक्ट प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स मीट रिटन स्पेसिफिकेशंस। मतलब आपने अगर आपको याद हो जब आप एसडीएलसी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप एक पेज पढ़ते हैं दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट बनता है जिसको एसआरएस बोलते हैं। तो एसआरएस के अंदर आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो लिख ली गई होती हैं, उसके ऊपर कस्टमर के साइन हो चुके होते हैं, चीज़ें डन हो गई होती हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है तो इसका मतलब है कि आपने अपने एसआरएस वाले डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली फुलफिल करना है। दूसरा जो पॉइंट है डेफिनेशन का वो ये है कि फिटनेस फॉर यूज कितना है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितने डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल हो सकता है, आपका प्रोडक्ट कितना टाइमली रिस्पॉन्स करता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें फिटनेस फॉर यूज में आती है। अ प्रोडक्ट कैन बी यूज एज इट वाज इंटेंडेड। जैसे उसका पर्पस है उसको वैसे यूज होना चाहिए, रादर कि आपका सिस्टम थोड़े से भी प्रेशर को बियर ना कर सके। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आप लोगों के वेरी सून पेपर्स होने वाले हैं और आपके पेपर्स जो हैं वो फॉर श्योर आपके यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को प्रेशराइज करने वाले हैं, उसके ऊपर बर्डन आने वाला है। सो फॉर दैट आपके सर्वर्स को इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स का उतना बर्डन जो है वो पेपर्स का बर्दाश्त कर सकें एक टाइम पे जब सारे स्टूडेंट्स उसको यूज कर रहे होंगे। सो फॉर दैट आपका जो फिटनेस फॉर यूज है या कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। मतलब रिक्वायरमेंट हमारी अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि फॉर हाफ एन आवर आपके सिस्टम को या आपके सर्वर को 2000 स्टूडेंट्स एक्सेस कर रहे हैं, तो फॉर दैट स्पेसिफिक हाफ एन आवर आपके सर्वर को डाउन नहीं होना चाहिए, और अगर डाउन हो तो उसकी कोई साइड रेमेडी मौजूद हो और कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद हो ताकि आप पायलट इम्प्लीमेंटेशन दे सकें अपने सिस्टम को और उसको साथ के साथ चला सकें या आप उसको पैरेलली चला सकें। सो द थिंग इज कि आपके प्रोडक्ट को इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि फॉर द टाइम बीइंग जब उसको यूज किया जा रहा है तो इट वर्क गुड, इट वर्क रियली वेल। अदरवाइज फिर आपको सिस्टम्स की और आपको फिर मशीन्स की जरूरत नहीं है, फिर चीजें मैनुअल की जा सकती हैं। तो ये है आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट क्वालिटी हो गई। अब प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट जाहिर सी बात है एक प्रोसेस होगा जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट विल सेटिस्फाई द नीड्स फॉर व्हिच इट वाज अंडरटेकन। जिस पर्पस के लिए उसको बनाया जा रहा है वो पर्पस फुलफिल हो जाए, इस चीज को इंश्योर करना प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। अब आपके प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है तो फिर आपको इस पूरे प्रोसेस को
चलाने के लिए फेजेस की भी ज़रूरत होती है। सो ये आपके पास कुछ फेजेस हैं जिसके अंदर आप क्वालिटी को प्लान करते हो, क्वालिटी को अश्योर करते हो, एंड देन फाइनली यू हैव टू कंट्रोल क्वालिटी। क्वालिटी प्लानिंग जो सबसे पहली फेज है, आपको पता है कि आपने जितने भी प्रोसीजर्स अभी तक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़े हैं उनका सबसे पहला फेज प्लानिंग ही होता है, और ये आपको पता भी है कि आपने कोई भी काम करना है तो यू शुड हैव टू प्लान फॉर दैट। Identifying which quality standards are relevant to the project and how to satisfy them। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और क्या वो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हैं भी या नहीं। मतलब हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए हर तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा सकता। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो जेनेरिक होते हैं, जनरल होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, वो हर तरह के प्रोडक्ट के लिए नहीं होते। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन से स्टैंडर्ड जो हैं वो बेहतर रहेंगे। जैसे आप आईएसओ स्टैंडर्ड्स देखते हैं तो आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो है वो सिर्फ रेलेवेंट टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने रूटीन लाइफ में भी देखते हैं जो आप देखते हैं कि वो आईएसओ सर्टिफाइड हैं। यस, उनके स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, लेकिन आईएसओ स्टैंडर्ड एक टोटलिटी पे स्टैंडर्ड है जो बहुत सारी चीज़ों को केटर करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स भी हैं जो आपके सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए ही हैं, उनके लिए ही बनाए गए हैं और उन्हीं के मेच्योरिटी लेवल को चेक करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। अगली चीज़ है क्वालिटी एश्योरेंस। Periodically evaluating overall project performance to ensure the project will satisfy the relevant quality standards। अब आपने क्वालिटी को अश्योर करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आपने अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करते रहना है कि वो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। ये चीज़ जो है ये क्वालिटी एश्योरेंस में आती है, और आप सबको पता भी है ऑलरेडी कि क्वालिटी एश्योरेंस के पूरे पूरे सेंटर्स होते हैं, क्यूए सेंटर्स होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, जो चेक ही ये करने के लिए बैठे होते हैं कि जो उनके डेवलपर्स ने प्रोडक्ट को डेवलप किया है वो कितनी हद तक आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को, सॉरी आपके यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। अगर तो वो जेन्युइनली फुलफिल करती है, इसके लिए आप बहुत सारी टेस्टिंग्स करते हैं। आपने इस चैप्टर में भी आप आगे पढ़ोगे टेस्टिंग, अगर आपने क्यूए पढ़ा है पूरा, एसक्यूए पढ़ा है पूरा, तो उसके अंदर आपने बहुत सारी टेस्टिंग्स पढ़ी भी होंगी। तो वो टेस्टिंग करने के पर्पसेस भी यही होते हैं कि आप क्वालिटी अश्योर कर सको। यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, साइट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बहुत सारी तरह की टेस्टिंग अवेलेबल हैं जो कि आप करते हो शिपमेंट से पहले और अगर ना हो सके तो शिपमेंट के बाद भी। अगली चीज़ है आपके पास क्वालिटी कंट्रोल। Quality control is basically monitoring specific project results to ensure that they comply with the relevant quality standards। अब आपने अगर इवेलुएट करना है अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को तो क्वालिटी अश्योरेंस है, लेकिन आपकी चीज बन गई है और अब आपने उसको सिर्फ मॉनिटर करना है तो वो क्वालिटी कंट्रोल है। और ये एक ऐसी चीज है जो एक ऑनगोइंग प्रोसीजर है, मतलब ये खत्म नहीं होता, ये टू बी कंटिन्यूड वाला काम है। आपका प्रोडक्ट जब तक चलता रहेगा तब तक आप उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के कोई ना कोई काम आप करते रहोगे। मतलब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक आपकी प्रोडक्ट चल रही है, आपकी प्रोडक्ट चलती रहेगी तो ये कंट्रोल का काम, इसके अंदर अपडेशन, इसके अंदर मेंटेनेंस, इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो दिस इज व्हाट इज प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये सारी चीज जो पीछे हम लोगों ने इलेबोरेट की है, अब वो सारी की क्वालिटी प्लान है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, उसको उन्होंने आपको आउटपुट बता दिए हैं यहाँ पे। मतलब ये जो इन्होंने यहाँ पे आपको समरी दी है, बेसिकली एक जो इन्होंने आपको डायग्रामेटिकल फिगर दे दी है, यहाँ पर उन्होंने आपको बताया कि क्वालिटी प्लानिंग के आउटपुट्स क्या हो सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान का डॉक्यूमेंट हो सकता है, क्वालिटी मेट्रिसेस आ सकते हैं, क्वालिटी चेकलिस्ट आ सकती हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान आ सकते हैं, बेसलाइंस आपकी आ सकती हैं और मैनेजमेंट प्लान आ सकते हैं। फिर आप जब क्वालिटी अश्योर करते हो तो उसके अंदर आपने रिक्वेस्टेड चेंजेस, लाइक अगर आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया और आपको लगा कि भाई ये तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, या अगर है तो थोड़ा सा माइन्यूट चीज़ों में फ़र्क आ रहा है, तो फिर आप चेंजेस जो है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो फुली रिजेक्शन दे या फुली एक्सेप्टेंस दे। देयर कैन बी पार्शियल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑल्सो। रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शंस, अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ पर एक्शंस बता सकते हो कि ये यूं करके इसको बेहतर किया जा सकता है। उसके अलावा अपडेट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, अगर कोई भी अपडेट है तो वो भी यहाँ पर आ जाए। अगली चीज़ है क्वालिटी कंट्रोल। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स आपने क्या लिए थे वो आ जाएंगे। वैलिडेटेड एंड रिकमेंडेड डिफेक्ट रिपेयर, अगर आपने कोई डिफेक्ट
को ठीक किया है जो कि पहले से एग्जिस्ट करता था, तो वो आपने किस तरह से किया है, किस तरह से उसको वैलिडेट किया, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो वो सब की सब चीज़ें जो आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर डॉक्यूमेंट करोगे, जो आपके पास आउटपुट्स आएंगे, वो सारा का सारा काम जो है वो आपका इसके आउटपुट्स के अंदर शामिल होगा। So this is the total summary of project quality management phases। और ये कितनी phases हैं? 3 हैं। फिर से बता रही हूँ, क्वालिटी प्लान पहली है, क्वालिटी एश्योरेंस दूसरी है, क्वालिटी कंट्रोल तीसरी। Now what is quality planning? यहाँ पे आपको एक ये कार्टूनिक इमेज है जिसके जरिए थोड़ी सी चीज समझाने की भी कोशिश की गई है। क्वालिटी प्लानिंग में वो कह रहा है कि इट इम्प्लाइज द एबिलिटी टू एंटिसिपेट सिचुएशंस एंड प्रिपेयर एक्शंस टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड आउटकम। अब प्लान है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी चीजों को फोरकास्ट करना पड़ता है, मतलब आपको बिफोर एंड सोचना पड़ता है कि अगर ये इस तरह से काम होगा तो इसके ये नुकसान ये फवायद हो सकते हैं। आपको मल्टीपल वेज सोचने पड़ते हैं कि आपके पास ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये सॉल्यूशंस मौजूद हैं। देन यू हैव टू थिंक और देन यू हैव टू पॉन्डर ऑन वन सिंगल सॉल्यूशन दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हो, आपके एम्प्लॉई जो हैं उनके लिए बेहतर हो, आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो और आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी दे सके। बिकॉज बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने बिजनेस का सोचना है एंड देन आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचना है फॉर श्योर। सो यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिक्स एनी प्रॉब्लम वी फाइंड इन आवर बीटा प्रोडक्ट। अब आप सबको पता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स के बीटा वर्जन होते हैं। बीटा वर्जन किस लिए होते हैं? वो इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि आप उसको सैंपल्स के ऊपर टेस्ट करवा सको। जब वो सैंपल्स के ऊपर एक्सेप्टेंस देते हैं तो देन आप उसको पूरी पॉपुलेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास बीटा प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप तो इसको कितने टाइम फ्रेम के अंदर फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आपके पास एक पीएम बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल टू स्केड्यूल फॉर द अननोन। मतलब वो कह रहा है कि जब चीजें पता ही नहीं है हम लोगों को जो डिफेक्ट आया है या जो एरर आया है उसकी नेचर ही जब पता नहीं है तो हम उसकी स्केड्यूल किस तरह बता सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है या जो आपको यहाँ पे इशू आया है, अब आपको उसकी नेचर नहीं पता है। वो हार्ड भी या मॉडरेट लेवल का भी हो सकता है या वो बहुत ही माइन्यूट भी हो सकता है, इग्नोरेबल भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि वी कैन नॉट स्केड्यूल दैट। तो अब यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है वो कह रहा है ट्राई टू थिंक एज अ मैनेजर नॉट एज एन इंजीनियर। मतलब वो कह रहा है कि डेवलपर बन के मत सोचे, मैनेजर बन के सोचे। मैनेजर बन के सोचेंगे तो देयर वुड बी मेनी थिंग्स टू कंसिडर। सो अब यहाँ पर वो एज एन पीएम जब जवाब दे रहा है तो वो कह रहा है कि इन दैट केस वेल we'll fix the problems before we find them। So उसने मैनेजर बन के ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है कि हम प्रॉब्लम्स ढूंढने से पहले उनको फिक्स कर देंगे। सो द थिंग इज कि प्रोजेक्ट मैनेजर को फोरकास्ट करना आना चाहिए। बेसिक पर्पस ये है इस एग्जाम्पल का कि आप फोरकास्ट करो और उन प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही रोकने की कोशिश करो और उसको एंटिसिपेट करो अच्छे से, जो आपका क्वालिटी प्लानिंग का बेसिक पर्पस है। लेकिन अगर आपके पास डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो वो डिफेक्ट्स आप काउंटर करोगे क्वालिटी अश्योरेंस पे। वहां पर ही फिर आप उसके प्रोसीजर्स में जाओगे, आप उसके डिफेक्ट्स बताओगे, फिर उन डिफेक्ट्स को ठीक किया जाएगा। पर ये वो तब की चीजें होंगी जब एरर्स या जब आपके प्रॉब्लम्स आ चुके होंगे, फिर आपने उनको फिक्स करना होगा। इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स बाय। अब आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर नहीं किए आप उसको पहले से ही प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो वो कह रहा है सिलेक्टिंग प्रॉपर मटेरियल्स, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेटिंग पीपल इन क्वालिटी, प्लानिंग अ प्रोसेस दैट इंश्योर्स द अप्रोप्रिएट आउटकम। मतलब कि पहले से ही आप वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें या वो प्रोसीजर सेलेक्ट करें, या अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वो लाइफ साइकिल सेलेक्ट करें जो कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर है। देन आप अपने लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करें, आप उनको सिखाएं, आप उनको ट्रेन करें। अगर आप किसी नए मॉड्यूल पे, आप किसी नए फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो तो उन लोगों को जो उस फ्रेमवर्क पे आपके साथ हैं उनको उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए काम करने की। एक और चीज कि आपके जो ट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके अनट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं, उन दोनों के आउटकम सेम टाइम फ्रेम के अंदर सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग होते हैं। मतलब अगर आपका एम्प्लॉई जो है वो ट्रेन होगा, प्रोफेशनल होगा, वो उसी टास्क को उसी टाइम फ्रेम पे करेगा, लेकिन एफिशिएंसी में फर्क होगा।
एंड सिमिलरली अगर आपका अनट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा वो उसी टास्क को उसी टाइम फ्रेम पे करेगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी में फर्क होगा. सो दैट्स व्हाई ट्रेनिंग मैटर्स. प्लानिंग अ प्रोसेस दैट इंश्योर्स द अप्रोप्रिएट आउटकम. एंड फाइनली आपने अपने ऐसे प्रोसेसेस प्लान करने हैं जो कि आपके आउटकम्स को इंश्योर कर सकें और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर सकें. ओके, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ये एक टेक्निक है क्वालिटी प्लान करने की. वो कहता ये है कि जनाब, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज अ क्वालिटी प्लानिंग टेक्निक दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई व्हिच वेरिएबल हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ओवरऑल आउटकम ऑफ अ प्रोसेस. आपके जो पूरा प्रोसेस है उसके आउटकम के ऊपर कौन से वेरिएबल ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, आप उस चीज़ को पहले रेक्टिफाई कर लें. मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो चीज़ें नॉट सो इम्पॉर्टेंट हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना और उनको सेग्रीगेट करना आना चाहिए. Computer chip designer would determine what combination of materials and equipment will produce the most reliable chip at a reasonable cost. अब उसने आपको आगे एग्जांपल दे दिया है कि अगर जो आपका डिज़ाइनर है या जो आपका डेवलपर है वो कंप्यूटर चिप का या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनर है या एम्बेडेड सिस्टम्स का डिज़ाइनर है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन से मटेरियल्स को कितने कॉम्बिनेशन में मिलाएंगे या क्या चीज़ करेंगे कि आपकी जो चिप है या जो कंप्यूटर चिप है वो रीजनेबल कॉस्ट में रेडी हो जाएगी और आपका काम जो है वो इंश्योर हो जाएगा, फाइनली आपके अकॉर्डिंगली हो जाएगा. ऑल्सो अप्लाइज टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इशूज सच एज कॉस्ट एंड स्केड्यूल ट्रेड ऑफ्स. और वो कह रहा है कि आपकी जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो इस चीज़ को भी देखती है कि आपने कॉस्ट और स्केड्यूल में किस चीज़ का ट्रेड ऑफ करना है, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट मैटर करती है या टाइम मतलब स्केड्यूल मैटर करता है. Junior programmers cost less than senior programmers but will not produce the same level of work in the same amount of time. अब वही वाली एग्जांपल जो मैंने पहले आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास दो तरह के एम्प्लॉइज हैं, जब मैंने आपको कहा है कि ट्रेन है और अनट्रेन्ड है या नॉट सो ट्रेन है, तो उसको उसने यहाँ पर जूनियर और सीनियर लेवल ऑफ प्रोग्रामर्स में डिवाइड कर दिया है और वो कह रहा है कि अगर जूनियर प्रोग्रामर्स हैं तो वो कम पैसे में वही काम कर रहे होंगे, सीनियर प्रोग्रामर्स ज़्यादा पैसों में वही काम कर रहे होंगे, लेकिन दोनों का जो लेवल ऑफ वर्क है एक ही टाइम फ्रेम के अंदर वो फर्क होगा. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस चीज़ को आपने इम्पोर्टेंट कंसिडर करना है. इज कॉस्ट the most important thing or the schedule or efficiency or effectiveness is the most important thing, and it depends on your business, it depends on your organization. An appropriately designed experiment to compute project cost and durations for various combination of staff can help determine an optimal mix of personnel. अब ये किया जा सकता है कि आप डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज़ कैलकुलेट करें, इस चीज़ को देखें कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी लगनी है, ड्यूरेशन इतना लगना है, तो इसके अंदर मिक्स ऑफ स्टाफ रखा जाए. मतलब सीनियर डेवलपर्स भी रखे जाएं एज वेल एज जूनियर डेवलपर्स भी रखे जाएं और उसके अगेंस्ट जो है वो काम स्टार्ट किया जाए. अब दोबारा से वही बात है कि ये सारी चीज़ें हैं प्लानिंग की. प्लानिंग गुड हो जाएगी तो आगे का काम आसान हो जाएगा, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी. लेकिन अगर आपने प्लानिंग के ऊपर ये चीज़ें नहीं सोची हैं, आपने अपना स्टाफ नहीं सोचा है, आपने अपने प्रोसीजर्स को नहीं सोचा है, तो फिर चीज़ें जो है वो आगे जाके पुअर हो सकती हैं. And appropriately involves documenting important factors that directly contribute to meeting customer requirements. और इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपने वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर लेनी है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है. इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दोगे और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे तो वो एक्स्ट्रा चीज़ों पे उतना हैप्पी हो ना हो, लेकिन अगर आपने उसकी स्टेटेड चीज़ों को छोड़ दिया है तो तब वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है वो उसके लिए वरी होगा और वो उसके लिए अग्रेसिव भी हो सकता है. सो द थिंग इज कि एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करना या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स जो से ज़्यादा काम करना वो तभी आपके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है जब आपने उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया. स्कोप एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स. अब आपके आईटी प्रोजेक्ट्स के स्कोप की क्या लिमिटेशंस हैं ये देख लेते हैं. It is often difficult for customers to explain exactly what they want in an IT project. अब customers के लिए भी ये चीज़ मुश्किल हो जाती है कि वो IT project में चाहते क्या हैं. हाँ, अगर आपका customer from the background of IT होगा तो मे बी वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर इलाबोरेट कर सकेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स दे सकेगा.
लेकिन अगर आपका जो कस्टमर है वो इतना लिटरेट नहीं है और उसको सीएस की इतनी ज़्यादा नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर चीज़ें जो हैं वो आपके रिक्वायरमेंट्स के फेज से ही वर्स्ट होना शुरू हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट स्कोप एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स दैट अफेक्ट क्वालिटी इंक्लूड, सबसे पहली चीज़ जो आपके स्कोप को अफेक्ट करती है वो है फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी इज द डिग्री टू विच अ सिस्टम परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन। फंक्शनैलिटी क्या है कि आपके सिस्टम में किस तरह से कितना बेहतर या कितना वर्स आपका फंक्शन जो है, आपका काम जो है वो परफॉर्म करना है। फंक्शनैलिटी के अंदर ये एक सब पॉइंट आ जाता है, दैट इज फीचर्स। हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये आपके सिस्टम के फीचर्स हैं या ये आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, तो फीचर असल में है क्या? फीचर्स आर सिस्टम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपील टू यूजर्स। आपके यूजर्स को वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपील करते हैं, या आप ऐसा समझ लो कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, ये सारे फीचर्स होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई विच आर रिक्वायर्ड एंड विच आर ऑप्शनल। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाले फीचर्स जो हैं ये अहम है और ये वाले फीचर्स जो हैं वो इतने अहम या गैर अहम है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि हम प्रोडक्ट्स के अंदर भी देखते हैं, और अगर आपको पता है, जाहिर सी बात है, हम अपने हार्डवेयर के अंदर भी ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि ये वाला फीचर जो है वो हमारे हार्डवेयर के अंदर होगा तो हम अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको अपने लिए ही एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं कि आपकी प्रोडक्ट या आपका प्रोजेक्ट कौन से फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर आपने उनको कौन कौन से फीचर्स दिए हैं, जिसको हम अक्सर ये बोलते हैं कि ये मॉड्यूल्स हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो बेसिकली मॉड्यूल्स जो हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, दोज आर फीचर्स। अगली चीज़ है आपके सिस्टम का आउटपुट। System outputs are the screens and reports the system generates. Need to define clearly what they look like. अब ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट के टाइम पर ही केयर करनी होती हैं कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट की जब आउटपुट मिले तो उसको ये स्क्रीन्स नज़र आनी चाहिए और इन स्क्रीन्स के ये लेआउट्स होने चाहिए। आपको पता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपकी जितनी भी वर्किंग है वो डिपेंड ही इस पे करती है कि यूजर को कौन कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है, कौन कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है, किस तरह की आउटपुट नजर आ रही है, उसका विजिबिलिटी क्या है उसके सिस्टम के साथ, उसकी इंटरेक्शन कैसी है। तो जितना वेल इंटरेक्टेड सॉफ्टवेयर होंगे उतने ही ज्यादा आपके क्लाइंट के लिए वो इजी गोइंग होंगे और उतने ही ज्यादा उसके लिए उसके यूज करना आसान रहेगा, और जाहिर सी बात है कि वो उसके साथ इंटरेक्ट बहुत बेहतर तरीके से कर सकेगा। अगली चीज है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एड्रेसेस हाउ वेल अ प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्म द कस्टमर इंटेंडेड यूज। जाहिर सी बात है वो काम किस तरह से कर रही है, अब कस्टमर की जो जरूरत है वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा है। कस्टमर के लिए भी आगे चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको क्विक रिस्पॉन्स करता हुआ सिस्टम चाहिए, उसको यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस चाहिए, उसको ड्यूरेबल चाहिए आपका सिस्टम, उसको आपके सिस्टम में चीज़ें क्या चाहिए, उसको स्टोरेज स्पेस का कंसर्न ना हो, उसको प्रोसेसर स्पीड से कंसर्न है या नहीं है। अब ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको आपके सिस्टम आपके यूज़र से रिक्वायरमेंट्स के टाइम पर ही पूछनी है या उनको बतानी है इवेंचुअली, कि जब आपका सिस्टम रेडी होगा तो ये इस तरह के सिस्टम्स के ऊपर ही चलेगा, मतलब आपका सॉफ्टवेयर आपकी प्रोडक्ट इस तरह के सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के साथ चलेगी, वरना नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई टूल खरीदते हैं मार्केट से, तो उसके आप अक्सर देखते हैं कि उसके स्पेसिफिकेशंस पे मेंशन होता है कि ये इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, इतने रैम के साथ चलेगा, इतने प्रोसेसर के साथ चलेगा। तो अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो परफॉर्मेंस फॉर श्योर अफेक्ट होगी। तो ये अगर आपके ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वाई नॉट आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के लिए। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Need to know volumes of data and transactions, number of simultaneous users, required response time. अच्छा, अब यहाँ पर वही वाले एग्जांपल मैं दोबारा से स्टेट कर देती हूँ जो मैं पहले करी थी कि आपने एग्जाम्स देने हैं और एग्जाम्स के अंदर आपने अपने ऑनलाइन सिस्टम को इस्तेमाल करना है जिसका बर्डन आपके यूनिवर्सिटी के सर्वर्स ने बियर करना है। तो अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वॉल्यूमनेस डेटा जो है वो आपके सिस्टम के सर्वर्स के ऊपर जा रहा है, वो किस तरह से उस टाइम पे परफॉर्म कर जाएगा, ये चीज बेसिकली परफॉर्मेंस है कि कितने यूजर्स उसको एक टाइम के ऊपर एक्सेस करेंगे, वो उसका रिस्पांस टाइम स्लो हो रहा है या वो उसी क्विक रिस्पांस के साथ चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ डेटा कितना आपका सिस्टम बियर कर पा रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाती हैं। आप देखते हैं अक्सर हम लोगों के सिस्टम जो है वो लोडेड इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा डेटा ट्रैफिक हो जाती है। आप अक्सर देखते हैं ऐसी साइट्स होती हैं जिनके ऊपर किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कोई इवेंट आना होता है,
तो वो साइट ही जो है वो बैठ जाती है कि अब उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन आने लग जाती हैं या इतने ज़्यादा लोड आने लग जाता है ट्रैफिक का, तो वो साइट ही हॉल्ट कर जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैश कर जाती है। सो दिस इज बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। आपका जो सिस्टम है वो उसको किस तरह से बियर कर रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगली चीज है रिलायबिलिटी। Reliability is the ability of a product or service to perform as expected under normal conditions. Customers must define expected level of service. अब आप नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जब उसको चला रहे हैं, आपकी सिचुएशन जो है वो आम ट्रैफिक के साथ ही चल रही हैं, तो आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, मतलब वो किस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड है कि आपका सिस्टम कैसा परफॉर्म करता हो, तो वो कहेंगे कि ये रिलायबल है। सो आपकी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से ईज़ आपको आपको प्रोवाइड करी है। जैसे कि आपने पीछे वाली वो जो कॉस्ट गार्ड वाली एग्जांपल में देखा था कि वो एक वायरस था, सेसर वायरस था, जिसकी वजह से आपके सिस्टम्स की विंडोज़ हॉल्ट हो गई थी और पता नहीं क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो लोगों को दोबारा पेन पेपर पे वापस आना पड़ा था। तो अगर ऐसा कोई चीज़ चल रही है, आपके सिस्टम जिस तरह से चल रहे हैं, तो उसका मतलब है सिस्टम्स की रिलायबिलिटी इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो उस क्वेश्चन मार्क को इम्प्रूव होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी एड्रेसेस द ईज ऑफ परफॉर्मिंग मेंटेनेंस ऑन अ प्रोडक्ट। और अब मेंटेनेबिलिटी क्या है कि आपकी प्रोडक्ट की मेंटेनेंस जो है उसमें कितना ईज है। आपको क्या नए सिरे से चीजें करनी पड़ रही हैं या मेंटेनेंस में आप पुरानी चीजों को थोड़ा बहुत रद्दो बदल के बाद चला रहे हैं, तो आपकी चीजें जो है वो ठीक हो रही हैं। सो इफ दिस इज द सिनेरियो, तो फिर हम इसको कहेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो इजी टू मेंटेन है, उसकी मेंटेनेंस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।